Bismillahirrahmanirrahim. Let's start with our new lecture, that is lecture number 25 for Web Technologies and Programming course. In today's lecture, we will discuss about how to validate user input. Before proceeding to the today's lecture, let's see the summary of previous lecture. In the previous lecture, we have discussed how to pass form data. For that, we need to know that why we are passing data. Basically, the forms are created to take the input from the user, and then the data is validated on the client side. The data is validated in two different ways. First, with the required field, the mandatory options are taken from the user, and then the fields are checked for pattern for each particular value that is given by the user. Then the data is sent to the server, and how we are going to send the data to the server? For that, we need to know about action and method. There are two common methods that are used to send data from the client side to the server side, and these are get and post method. When we need to use get method, or what does the get method will do? When we are mentioning the method as get, then the data is sent to the server and the data is appeared in the URL address of the user browser. And get method also maintains in the user browser history. Get method request can also be bookmarked, and the get method is suitable when you are not giving any sensitive data like passwords or credit card information. While when you want to give sensitive information like credit card information, bank account details, the passwords of different email addresses, so it's better to use the post method. The post method has no length restriction. A post method uses the binary values, and the post method cannot be bookmarked. The post method does not appear in the URL for the user inputs. So this is all about get and post method. So we have seen in the previous lecture the different examples for get and post methods with code as well. Then we have discussed about super global variable. There are some predefined variables which are defined in PHP that are said to be super global variable, and they are providing rich set of interaction for the user. Then we have discussed about passing data with forms. We have discussed in detail how to take the field data from the user and then pass it to the server. Similarly, the hidden field data can also be taken from the user and can be sent. The data from the checkbox, the radio button, and the select list can also be taken from the user and can be sent to the server. In the end of our previous lecture, we have discussed what is session. Session is maintained by the server, and session reads the value of client information. And then we have discussed about how to maintain session ID and link the pages and get the information of one page to other. So we have discussed a detailed example with code over there. What we are going to cover in today's lecture? In today's lecture, we are going to discuss about regular expression in PHP, and we are also going to validate the user input at server level, and we are also going to see the string functions as well. Now, what is regular expression in PHP? Regular expression are the sequence or pattern of character itself. They provide the foundation for pattern matching functionality. So regular expression बेसिकली एक स्पेसिफिक पैटर्न है, स्पेसिफिक सीक्वेंस है जो हमें प्रोवाइड किया जाता है, और इस सीक्वेंस और इस पैटर्न को यूज़ करते हुए हम किसी पर्टिकुलर पैटर्न को पर्टिकुलर
फंक्शनैलिटी को मैच कर सकते हैं। और रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली हमें प्रेजेंट करता है, एक बड़ा कंसाइज स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है जिसके जरिए हम पैटर्न्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग के लिए। एंड रेगुलर एक्सप्रेशन इज बेसिकली यूज्ड एज अ फाउंडेशन फॉर डिस्क्राइबिंग और मैचिंग डेटा अकॉर्डिंग टू डिफाइंड सेट ऑफ सिंटैक्स रूल्स। सर्चिंग के अंदर मोस्टली जो हम सर्च करते हैं वेबसाइट्स के अंदर डिफरेंट पैरामीटर से, सो सर्चिंग की बैग के ऊपर हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन की टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। एक फुल टेक्स्ट सर्च है, पार्शियल सर्च है, तो रेलिवेंट रेगुलर एक्सप्रेशन के पैटर्न अप्लाई हुए होते हैं और उनके अगेंस्ट हम डेटा मैच कर रहे होते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस में। सो हियर यू कैन सी an example for the regular expression pattern. Here it is given that for not and then 0 to 9, then 2 dash 0 to 9, 2 dash 0 to 9. So ये एक पैटर्न है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, हर मीनिंग का, हर ब्रैकेट का, हर सिंबल का क्या मीनिंग है। इस पैटर्न के जरिए हम यूजर से स्पेसिफिक फॉर्मेट में जो डाटा ले रहे हैं उसको हम वैलिड कर सकते हैं कि आइदर रेलिवेंट डाटा स्पेसिफिक फील्ड में प्रोवाइड किया गया और नहीं। सो यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन यू कैन सर्च अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग इनसाइड अनदर स्ट्रिंग and as well as you can replace one string by another string, and also you can split a string into many chunks. So there are three different ways for regular expression to be used. Either आप लोग क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग को फाइंड कर सकते हैं, पर्टिकुलर एक स्ट्रिंग को किसी और स्ट्रिंग के लिए, एक स्ट्रिंग को आप फाइंड करके रिप्लेस कर सकते हैं, और एक स्ट्रिंग को स्प्लिट कर सकते हैं डिफरेंट डेटा चंक्स में। PHP offers two specific regular expression function, and each of these regular expression function correspond to certain type of regular expression. You can use any of them depending upon your comfort. Number one is POSIX regular expression, and number two is Perl style regular expression. We are going to discuss POSIX regular expression. So here you can see one by one. Let's see the first one. This is basically used, this shape is basically used at start matching from the start. When you want this to be used, when you want to match a pattern from the start, then there is a bracket given, and this bracket is starting here and ending here, and there is a pattern given 0 to 9. And 0 to 9 are basically numeric digits, and 0 and dash 9, where dash is representing 0 till 9, means all the values are included. Then the middle bracket and 2 is mentioned. This is a specific sub pattern. So pattern के अंदर ये वाला जो एक portion है ये एक sub pattern है. And then the dash is mentioned. This is basically a fixed character that is differentiating between different sub patterns. And then again you have mentioned 0 to 9, where dash is basically presenting all the values from 0 to 9, and then 2 is mentioned. So again the same sub pattern is appearing, and then dash and then 0 to 9, and then 4 is mentioned in the middle bracket, again a sub pattern is mentioned, and then the dollar sign. The dollar sign is basically showing the end of the string. The string that you want to match will be considered for the start here and will be considered for the end over here. Now in each pattern, what is the 0 to 9 and 2 means? 0 to 9 are the allowed characters. जब भी आप ये इन ब्रैकेट्स के अंदर या लार्ज ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर जो आप मेंशन करेंगे, ये पर्टिकुलर वो आपके पैटर्न के कैरेक्टर्स हैं जो आप मैच करेंगे. सो आपके अलाउड कैरेक्टर्स जो है वो आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं इस ब्रैकेट के अंदर, जैसे हमारे 0 to 9 पैटर्न मैचिंग आ रहा है. जबकि आप जो मिडिल ब्रैकेट के अंदर मेंशन करेंगे, आपकी मिडिल ब्रैकेट में जो चीज आ रही है वो आपकी डिस्क्रिप्शन आ रही है कि आपने जो अलाउड कैरेक्टर्स मैच करने हैं उनकी अकरेंस कितनी हो. सो इफ इट इज रिटन 0 to 9 एंड देन द मिडिल ब्रैकेट 2, सो इट मीन्स मिनिमम, दिस इज अ मिनिमम अकरेंस, राइट. सो मिनिमम 0 to 9 2 टाइम्स आ सकता है.
Similarly, in the next picture, 0 to 9 2, 0 to 9 minimum 2 times आ सकता है, and then again 0 to 9 4, so 0 to 9 minimum 4 times आ सकते हैं. So this is the way for writing a pattern in regular expression. Now we are going to discuss each and every component, each and every particular character and brackets and special characters in regular expression. The first one are brackets. Which one brackets are? These are basically about large brackets. They have a special meaning in regular expression. They are used in the context of regular expression when we want to find specific range of characters. If we want to give specific range of characters that we want to match, then we have to give that particular large brackets. For example, in the previous slide we have seen, हमने ब्रैकेट के अंदर 0 to 9 मेंशन किया था. So इसका मीनिंग ये है कि एक रेंज है कि 0 से स्टार्ट करके अब 9 तक मैच करें. So ये एक रेंज को डिफाइन कर रही है ब्रैकेट. एंड नॉर्मली हमारी इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ हम मैच करवा रहे होते हैं, कॉमनली जो मोस्टली हमारे आते हैं वो ये ऑप्शंस आती हैं. दैट इज A to Z, स्मॉल a to कैपिटल Z, and capital A to small z, and small a to small z, and then 0 to 9. So brackets हमारे पास रेंज को यूज करने के लिए इस्तेमाल हो रही है यहाँ पे. The next one is quantifier. Quantifier is basically the frequency or position of bracketed character sequence and single characters and can be denoted by a special character. So आपने ब्रैकेट में जो भी कैरेक्टर दिया है, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स दे सकते हैं आप, मल्टीपल्स, या आपने कोई एक सिंगल कैरेक्टर दिया है, उसकी कितनी अकरेंस होगी आपकी जो रिक्वायर्ड आउटपुट है. मींस अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप एक डाटा सर्च करें, उसमें लेट सपोज आप चाह रहे हैं आप 0 to 9 में से कोई नंबर सर्च करें, और आप ये चाह रहे हैं कि 0 to 9 में से जो नंबर आ रहा हो वो एक दफ़ा आ रहा हो, 2 दफ़ा आ रहा हो, या जितनी दफ़ा भी आ रहा हो, ये जो अकरेंस है कि कितनी दफ़ा वो अकरेंस होगी इस पर्टिकुलर कैरेक्टर की, इसको देखने के लिए आपको जो यूज़ करना है दैट इज़ क्वांटिफायर. और हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन में डिफरेंट तरह के क्वांटिफायर्स हैं और उनके डिफरेंट सेमेंटिक के डिफरेंट मीनिंग्स हैं. सो ईच स्पेशल कैरेक्टर हैव अ स्पेसिफिक कॉनोटेशन, मीन स्पेसिफिक मीनिंग. नाउ द स्पेशल क्वांटिफायर जो कॉमनली हमारे यूज्ड होते हैं, दैट इज हमारे पास प्लस है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल हमारे पास स्टैरिक, देन क्वेश्चन मार्क, एंड देन इंटीजर, रेंज, एंड देन डॉलर फ्लैग्स. These all follows a special character sequence. Now see quantifiers क्या क्या हैं और वो किस particular sequence में आ रहे होते हैं. So let's see, हमारे पास एक particular हमने character को जो है वो consider किया, that is P for describing all the quantifiers. P एक alphabet हमने sample example के तौर पे ले लिया. आप इसको सर्च करने के लिए अपने A भी ले सकते हैं, Z भी ले सकते हैं, D भी ले सकते हैं. Now let's consider P plus. P plus means it will match any string containing at least one P. So at least one occurrence जरूर होगी. Minimum there should be one P. When you are mentioning plus, it means one minimum होगा. So maximum times के ऊपर बात नहीं हो रही, means ज़्यादा P भी हो सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा जरूर होगा. The second one that is mentioned is P static. It matches any string containing 0 or more P's. So when you are giving static, it means it can contain 0, means less than 1. Previous में हम लोग minimum 1 कह रहे थे, इसमें 0 भी हो सकता है. Either 0 occurrence है और more than 1 occurrence है. So इसके लिए आ जाएगी हमारे पास P static. Then the P question mark is mentioned. It matches any string containing 0 or more P's. So when the question mark is mentioned, then it is again the same as P static.
के 0 भी आ सकता है और आपके पास मैनी पीस भी आ सकते हैं। तो आपको एक ही चीज लिखने के दो डिफरेंट स्टाइल्स प्रेजेंट कर दिए गए, आइदर यू कैन राइट पी स्टेरिक और आइदर यू कैन राइट पी क्वेश्चन मार्क, वन इज द सेम थिंग। देन पी and then n is written in middle bracket. So it matches any string containing a sequence of n p's. So n का मतलब है कि सीक्वेंस में हमारे पास इतनी दफा p आ जाए। लेट्स सपोज अगर हमारे पास लिखा हो p2, इसका मतलब है हमें 2 टाइम्स कंसेक्टिवली सीक्वेंस में p चाहिए जो हम पैटर्न मैच करना चाह रहे हैं। एंड देन इफ इट इज रिटन p2,3, इसकी रिस्ट्रिक्शन है कि इट मैचेस द पर्टिकुलर p को मैच करेगा विथ सीक्वेंस ऑफ 2 और 3। तो आपने बता दिया आइदर 2 टाइम्स हो p और 3 टाइम्स हो। एंड इफ इट इज रिटन p2 और आपने कोई भी चीज मेंशन नहीं की, सो इट मींस कि एटलीस्ट 2 हो, मैक्सिमम जितनी भी ऑप्शन है। सो इट विल मैच एनी स्ट्रिंग कंटेनिंग अ सीक्वेंस ऑफ एटलीस्ट 2p, and max is not given, so it can carry on for 3, 4, 5 and so on. Now the dollar sign is mentioned. When the dollar sign is mentioned, it is used when we want to match a pattern for the end of it. So we want कि एक ऐसा pattern match हो, एक ऐसा word जिसके end में PR हो, we are giving dollar sign. And then this V down V, then it matches any string with P at the beginning of it. हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो हम ये मेंशन करेंगे कि हमारे पास ये जो वी शेप्ड है, हमारे पास टर्न डाउन वी शेप्ड, इसको यूज करें। सो मूविंग ऑनवर्ड वी हैव सम अदर रूल्स इन रेगुलर एक्सप्रेशन। स्टार्ट एंड एंड ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन, either we want an optional option or some necessary option. If it is an optional option, so we are giving these symbols. So हमारे पास जो 2 स्ट्रेट लाइन्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइड में, ये दोनों स्ट्रेट लाइन्स ऑप्शन की रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास। देन अगर हम किसी सब पैटर्न को मेंशन करना चाह रहे हैं, सो फॉर दैट वी नीड टू हैव रेंज ऑफ अलाउड कैरेक्टर्स, रिक्वायर्ड रेंज ऑफ अलाउड कैरेक्टर्स। सो इफ यू डू कंसिडर अवर हेयर, हमारे पास ये ब्रैकेट 0 to 9 and then bracket is closed. So here we are mentioning the range of particular patterns. और हमारे पास लेंथ क्या है, ये हमने जो n को मेंशन कर दिया, हमारे पास उस पैटर्न की लेंथ हमारे पास होगी। सब पैटर्न जो हैं वो हमारे पास फिक्स कैरेक्टर के साथ भी होते हैं और हम उसमें मेंशन कर देते हैं कि हमारी क्या रिस्ट्रिक्शंस है पर्टिकुलरली। नाउ मैचिंग फ्रॉम द स्टार्ट, हम स्टार्ट से अगर मैच करना चाहते हैं, हमारे पास ये स्टार्ट का सिंबल है। सो इफ यू वांट टू मैच, इफ डू नॉट मैच फ्रॉम स्टार्ट, पैटर्न एग्जिस्ट इफ डू नॉट मैच फ्रॉम स्टार्ट। सो हमारे पास अगर स्टार्ट से मैच नहीं कर रहा तो इट मींस एग्जिस्ट नहीं कर रहा, फॉर दैट वी आर गिविंग इट। और अगर हम एंड तक मैच करना चाह रहे हैं, सो ये हमारे पास स्टार्ट के लिए ये 12 था, अगर हम एंड में मैच करना चाह रहे हैं 1 2 3 एंड में ही आ रहे, तो हम ये डॉलर साइन के सिंबल को यूज करेंगे। सो पैटर्न एग्जिस्ट इफ डू नॉट मैच टिल एंड, एंड में हमारे पास ये मैच होना चाहिए। सो फॉर एग्जैक्ट मैच के स्टार्ट में एग्जैक्टली यही हो, हम यूज करेंगे स्टार्ट के लिए दिस सिंबल, एंड फॉर एग्जैक्ट एंड हम यूज करेंगे दिस सिंबल पर्टिकुलरली। सो this one, the symbol turn down V is basically matching the start with the given pattern, and the dollar sign is matching the end with the given pattern. And here if you want to mention the range of characters, you have to mention in this way dash and then colon. And if you want to make a class of character, a range of characters, then you have to mention these brackets. And if you want to negate a particular class, again you have to mention the down V inside the brackets. So this will negate all the class over there. Then quantifiers we have already discussed, but these are the most commonly used quantifier for discussing in detail. That n will match a character, class or subclass for n times at least. So आपने जो भी ब्रैकेट्स के अंदर लार्ज ब्रैकेट्स में मेंशन की होगी
क्लास, कैरेक्टर या पैटर्न, उसको आप जब मिडिल ब्रैकेट्स में n मेंशन करेंगे तो एटलीस्ट उतनी दफ़ा ज़रूर सर्च करेगा। एंड जब उसको आप मेंशन करेंगे n, m, then it will match a character, class or subclass for minimum n times and maximum m times. So n is the minimum number of times that you are going to represent and m is the maximum number of time. So let's say for example if it is written 2 for example and it is for n value, and if you have written 3 for m value and the p is written, so what does it mean? It means कि आपको p pattern चाहिए minimum 2 times and maximum 3 times the p should appear. The question mark, it matches the character, specific character, class or sub pattern, either 0 or 1 time. So the define it can be is minimum 0 occurrence or maximum 1 occurrence. And if we are mentioning the plus, it means match the character, class or sub pattern at least 1 और एट मोर आप जितना भी उसको मेंशन कर लें। सो एक अक्रंस आपको चाहिए। जबकि जो स्टैटिक है जब आप वो मेंशन करेंगे इट मींस यू वांट मिनिमम 0 और एट मैक्स हाउ मेनी टाइम्स यू वांट। सो 0 अक्रंस और ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा आपका हो जाए, दैट इज रिप्रेजेंटिंग विद स्टैटिक। देयर इज आल्सो सम प्री डिफाइंड कैरेक्टर रेंजेस दैट आर ऑलरेडी डिफाइंड। फॉर एग्जांपल /d is used exactly if you are using as 0 to 9 numeric digit. So आप 0 to 9 numeric digits को mention करें ब्रैकेट्स में या /d यूज कर लें, ये आपको सेम मीनिंग देंगे। For capital D /d it is the negation of small d की जो क्लास थी उसकी आप कि other than that it is not considered, उसके opposite आप चाह रहे हैं। And /w if you want it is exactly as a to z small and then a to z capital and then 0 to 9 numeric digits को आप चाह रहे हैं। तो ये प्री डिफाइंड कैरेक्टर रेंजेस हैं आपकी। नाउ सम अदर एग्जांपल ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस। वैलिडेटिंग द डेट। हाउ यू आर वैलिडेटिंग द डेट? डू कंसिडर। So the start is given and then /d is mentioned where you know /d means 0 to 9 range, right? So 0 to 9 आप चाह रहे हैं कि आपके पास पैटर्न हो and at least you want it 2 means 2 occurrence आपके पास 0 to 9 में से होनी चाहिए। Then the next सब पैटर्न, इसलिए आपने इसमें डैश को मेंशन किया again /d। सो आपके पास अगेन /d 0 to 9 कोई ऑप्शन आएगी एंड अगेन ये 2 आपके पास मेंशन है। देन डैश सब पैटर्न के डिफरेंशिएट करने के लिए एंड /d 0 to 9 एंड इस टाइम आपकी 4 अकरेंस होनी चाहिए और आपके पास क्या है $, ये एंड ऑफ द पैटर्न के लिए। सो अगर आप पहले वाला देखें ये फर्स्ट वन, सो नॉर्मली हमारे पास जो एक डेट का पैटर्न होता है उसमें हमारे पास जो फर्स्ट चीज होती है वो हमारे पास डे होती है। सेकंड चीज जो हमारे पास जो ऑप्शन आती है नॉर्मली वो हमारे पास मंथ होता है एंड द थर्ड ऑप्शन दैट वी यूजुअली हैव इन आवर डेट फॉर्मेट इज द ईयर। ये हमारे पास ऑप्शंस होती हैं। सो हमारे पास 0 to 9 हमारे पास इसमें अब देखें हमारे पास रेंज बन रही है, इनमें से कोई वैल्यूज होंगी और 2 अकरेंस होगी। अगेन 0 to 9 फॉर द मंथ होगी, इसके लिए भी हमारे पास 2 अकरेंस होगी एंड अगेन हमारे पास 0 to 9 है और हमारे पास 4 अकरेंस होगी। सो अगर मैं 2 अकरेंस की एग्जांपल लूँ, लेट्स सपोज टुडेज डेट फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ कि आज हमारे पास 18 डेट है, it is let's suppose 18 January. So then and 0 to 1 again हमारे पास 2 occurrence है, so it's 18 January today, so it's 18/01 and let's suppose year, अब हमारे पास एटलीस्ट जो हमारे पास ऑप्शंस है वो 4 टाइम्स हमने occurrence देनी है, so हमने 4 पैटर्न दे दिया। so it is following today's date, that is 18/01 month is January and 2016 is the year. Similarly for CNIC, if we want to present CNIC,
तो हम मेंशन कर रहे हैं स्टार्ट, और हमारे पास पहले 5 पैटर्न हो, बिकॉज CNIC के अंदर ऐसा ही है कि शुरू में हमारे पास 5 वैल्यूज हमें अलाउ होती हैं CNIC में, देन हमारे पास नेक्स्ट 7 वैल्यूज हमें CNIC में अलाउ करनी है, एंड देन हमारे पास लास्ट में एक वैल्यू आती है। सो ये हमारा पाकिस्तान के अंदर जो CNIC रिप्रेजेंट करते हैं उसका पैटर्न है, उसको मैच करना चाह रहे हैं। सो डू कंसिडर ओवर हियर 5 values will be matched for 0 to 9, then the 7 values will be matched for 0 to 9, and then the 1 value will be matched for 0 to 9. अब ये कंप्लीट हो गई है, so that's why डॉलर सिंबल। सिमिलरली अगर हम एक ईमेल के पैटर्न को मैच करना चाह रहे हैं, फॉर डेट हमारे पास A to Z हमारे पास स्मॉल पैटर्न मौजूद है कि हमारे पास ईमेल में A to Z कोई ऑप्शन हो सकती है, A to Z कैपिटल में ऑप्शन हो सकती है, हमारे पास 0 to 9 न्यूमेरिक हो सकती है, ईमेल में हमारे पास अंडरस्कोर एंड डॉट अलाउ होता है, दैट्स व्हाई वी आर आल्सो इंक्लूडिंग दैट फॉर द रेंज। देन वी आर चेकिंग प्लस सिंबल, उसके साथ हम ईमेल में स्पेस नहीं दे रही, तो हम कंजक्टिवली चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट देन एट द रेट हमारे पास पर्टिकुलर सिंबल है वो हम चेक कर रहे हैं, एंड देन वी आर चेकिंग कि हमारे पास उसके बाद जो भी हमारे पास डोमेन नेम होगा वो A to Z एंड नंबर 3 to 5, मिनिमम 3 अकरेंस होगी उसकी एंड मैक्सिमम 5 टाइम्स की अकरेंस होगी, जो में हमारे पास वर्ड्स आएंगे नॉर्मली। एंड देन हम उसमें चेक कर रहे हैं डॉट, और डॉट के बाद हम आगे देख रहे हैं A to Z। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास .co है, सो .com है, सो आइदर 2 ऑप्शंस होंगी या आइदर हमारे पास मैक्स 3 ऑप्शंस होंगे, स्पेसिफिक फॉर्मेट में हम चाह रहे हैं, एंड देन एंड होगा हमारे पास, दैट्स व्हाई वी आर एंडिंग इट ओवर डॉलर सिंबल। So in this way we are validating the date, the CNIC and email, और हमने बेसिक एक्सप्रेशन के रूल्स को और क्वांटिफायर्स को यूज किया। अब रेगुलर एक्सप्रेशन को हमने जो लिखा ये प्रैक्टिस के साथ आपको टाइम टू टाइम आएगा। सो आप डिफरेंट एग्जांपल्स लें और रेगुलर एक्सप्रेशन को क्रिएट करें, और उसके ऊपर फिर आप अपनी रेलिवेंट डेटा को एंटर करें और देखें कि पैटर्न के रूल्स को वायलेट तो नहीं हो रहा, देन यू विल बी द एक्सपर्ट फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन। इसी तरह नॉर्मली हम जब वेब फॉर्म्स ले रहे होते हैं तो हम लोग नेम के फॉर्म को वैलिडेट करना चाह रहे हैं पर्टिकुलरली। सो यू कैन सी यहाँ पे स्टार्ट है, एंड देन हमने नेम के अंदर सिंपली A to Z स्मॉल या A to Z कैपिटल। सो नॉर्मली दिस इज द वे वी आर प्रेजेंटिंग, और मिनिमम हमारे पास 5 अकरेंस वी आर रिक्वायर्ड। 3 भी हो सकती हैं, लाइक अली इज अ 3 कैरेक्टर नेम, सो 3 ऑप्शंस भी हो सकती है नेम में। सो हेयर 5 के रिस्ट्रिक्शन है, एंड आपने जो अलाउ किया मैक्सिमम कोई नेम 25 कैरेक्टर्स तक आपने अलाउ किया है, एंड देन डॉलर साइन आप उसको पैटर्न को मैच करना एंड कर रहे, तो एंड पे डॉलर साइन आप मेंशन कर रहे हैं। एंड देन द पासवर्ड, अगर आप पासवर्ड में चाह रहे हैं कि एट द रेट आप चेक करें कंटेन हो, सब सिंपली चेक कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं पासवर्ड मस्ट कंटेन A। सिमिलरली अगर आप पासवर्ड के अंदर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहे हैं कि आपके पासवर्ड के अंदर जो है वो आपके 14 कैरेक्टर्स हो, मिनिमम 8 कैरेक्टर्स हो, तो आप मेंशन कर सकते हैं अपने पासवर्ड में जो कैरेक्टर्स अलाउ कर रहे हैं वो आप रेंज मेंशन कर सकते हैं कि क्या क्या पासवर्ड के अंदर मैचिंग है। सो देयर आर आल्सो सम प्री डिफाइंड फंक्शन फॉर वैलिडेटिंग यूजर इनपुट्स। ऑलरेडी हमारे पास डिफाइंड कुछ ऐसे फंक्शन हैं PHP के अंदर जिसके जरिए हम मैच कर सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज pre_reg_match, दिस वन वी हैव गिवन। इस मेथड में क्या है, दिस विल सर्च अ स्ट्रिंग फॉर अ स्पेसिफिक पैटर्न। सो आपने इस मेथड को जब यूज करेंगे तो आपने एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग को सर्च करना है, और स्ट्रिंग के अगेंस्ट आप पैटर्न को मैच करना चाह रहे हैं तो आप pre_reg match को यूज कर लेंगे। देन द नेक्स्ट वन इज रिटर्न्स ट्रू इफ इट एग्जिस्ट एंड रिटर्न फॉल्स अदरवाइज। सो ये ट्रू रिटर्न कर देगा इफ इट इज मैचिंग विद इट, एंड इट विल रिटर्न फॉल्स अदरवाइज इफ इट इज नॉट मैचिंग विद इट अकॉर्डिंगली। सो here you can see the pre_reg_match. Now we have given the pattern and then we have taken the variable string over here. So in this way it will match the particular string for that pattern and give the required result accordingly. इसी तरह हमारे पास एक और फंक्शन है pre_reg_match_all। ये जो है हमारा जो मेथड है ये हमारे किसी भी स्ट्रिंग की जो पैटर्न है उसकी तमाम अकरेंस को मैच करेगा फॉर ऑल।
जो हमारे पास पिछला था प्री मैच, ये हमारे पास ट्रू करेगा अगर एग्जिस्ट करता है और फॉल्स करेगा अगर एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि ये हमें तमाम अकरेंस मैच करके देगा। देन preg underscore grep, बेसिकली इट इज सर्चिंग ऑल द एलिमेंट्स फॉर इनपुट एरे। अगर आप एक इनपुट एरे में चेक करें और रिटर्न करना चाह रहे हैं जो भी हमारे पास सर्च रिजल्ट है इन द रेगुलर एक्सप्रेशन, देन यू आर यूजिंग preg underscore grep. Let's take the example. In the HTML, head tag is mentioned, the title is user validation. User को डाटा जो उसने मेंशन किया हमें उसकी इनपुट को हम वैलिडेट कर रहे हैं. Head tag is closed, body tag is started, and heading H1 user registration is presented. Now the form tag is created. Action is given as user validation.php. This is the action that is presented, and method is equal to post. Post के जरिए हम data travel करवाएंगे, that will not appear in the URL. Now a table is created. The first row of table tr is created, td. The table data cell is created, name, and table data cell is closed. Then again table data cell is created, input type is mentioned as text, and name is appearing as name, and table data cell is getting closed. And then table row is closed. The next is table row. Then table data cell is email, and email is basically getting closed over here. And then the table data cell is mentioned, input type is text, and again the name is email, and the table data cell is basically closed over here. The next is basically CNIC, input type is text and name is CNIC. Table data cell is closed, table row is closed, and then again a new row is created with tr tag, and new cell in that row date of birth is created, and table data is given as input type text, name is date of birth, and table data cell is closed, table row is closed, and new table row is started. Again a data cell in the end as a submit button will appear, and then the table row is closed, form is closed, body is closed, HTML closed. So in this way we have created a table with 4 rows and 5 rows, and each row contain name, email, CNIC, and date of birth as input type text, and in the end we have a input type a submit option. So now see what is appearing over here. User registration, this is the header. The first table row, that is name, the second one is email, the third one is CNIC, and the fourth one is date of birth that is appeared, and then the submit button is considered to be pressed. So what will be the output of it? You can see over here, head tag started, then title tag user validation. This is the title that will appear, head tag is closed. Now we have to validate all that particular text accordingly. So PHP, so here we are receiving the values from the user by variable assigning method. These are the global variable, super global variable that is mentioned. So सबसे पहले हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया डॉलर के साइन के साथ नेम का वेरिएबल, और उसमें सुपर ग्लोबल वेरिएबल के यूज करते हुए पोस्ट का मेथड यूज किया, और जो भी नेम के अंदर वैल्यू आ रही है उसको हमने गेट करवा लिया. सिमिलरली हमने ईमेल को गेट करवा लिया, ईमेल के अंदर भी हमने सुपर ग्लोबल वेरिएबल पोस्ट का मेथड यूज किया, और ईमेल को हमने एक न्यू वेरिएबल क्रिएट किया, ईमेल उसमें हमने मेंशन कर दिया. फिर हमने CNIC को भी सुपर ग्लोबल वेरिएबल को यूज किया और हमने CNIC को भी ले लिया. एंड सिमिलरली डेट ऑफ बर्थ को भी हमने एक नए वेरिएबल डेट ऑफ बर्थ में असाइन करवा दिया. सो जो भी यूजर ने वैल्यूज ली उन सारी वैल्यूज को हमने अपने क्रिएटेड वेरिएबल्स में नेम, ईमेल, CNIC, डेट ऑफ बर्थ में सेव करवा लिया. नाउ अब हम मैच करने जा रहे हैं उन पर्टिकुलर जो वैल्यूज हमने ली यूजर से, उनके ऊपर मैचिंग है. सो हमने प्रीरेक मैच का फंक्शन यूज किया यहाँ पे, और प्रीरेक मैच को यूज करते हुए हमने यहाँ पे मेंशन किया कि स्टार्ट जो है हमारे पास A to Z हो, स्मॉल या कैपिटल, मिनिमम 3 अकरेंस हो हमारे पास, मैक्सिमम 25 हो, और इसको हमने एंड करवा दिया. और नेम के लिए हमने ये चेक किया कि ये नेम के लिए मैच हो. इसके ऊपर हमने मेंशन करवा दिया कि अगर ये सारी जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये इफ की कंडीशन में है, सो इफ की कंडीशन अगर मैच हो रही है उस पर्टिकुलर के लिए, तो वो उसको कह दे कि एक रॉन्ग इनपुट नेम है,
बिकॉज दिस इज नॉट द राइट वे मैच। सो अगर नहीं है तो इट मीन्स ये सही है, सो आप अपना नाम प्रिंट करवा दें, एल्स के एग्जीक्यूट होगी कंडीशन। लाइन ब्रेक को हमने मेंशन किया। अब हम ईमेल को चेक करने चाह रहे हैं, अगेन नॉट लगा हुआ है। सो प्री मैच हमने मेंशन की कि स्टार्ट में अगर हमारे पास A to Z या स्मॉल a to Z या 0 to 9 है, एंड देन अगर मैच हमारे पास नहीं हो रही देन सो हमने मेंशन किया प्लस @ A to Z एंड 3 to 5 कैरेक्टर्स हो, एंड अगेन हमने इसको मेंशन किया जो एंडिंग हमारे पास डोमेन का एड्रेस आ रहा होगा उसको और $साइन से एंड किया। सो इसको अगर मैच नहीं करेगा, सो मैचिंग नहीं है तो इनवैलिड ईमेल, और अगर मैचिंग हो रही है तो एल्स में योर ईमेल एड्रेस विल बी डिस्प्लेड अकॉर्डिंगली। सिमिलरली फॉर CNIC हमने इसको यूज किया, जैसे हमने पीछे इंडिविजुअली भी देख लिया था CNIC का पैटर्न। सो हमारे पास /t जो 0 to 9 की रेंज को डिफाइन कर रहा है 5 कैरेक्टर्स, देन /t फॉर 0 to 9 7 कैरेक्टर, एंड /t1 एंड $साइन एंडिंग के लिए हमारे पास आ रहा है, और CNIC की वैल्यू हमने यहाँ पे ली। और अगर ये मैच नहीं करेगा तो एरर आएगा इनवैलिड CNIC, अदरवाइज आपका CNIC वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। देन लाइन ब्रेक, एंड अगेन हम डेट ऑफ बर्थ के लिए पैटर्न को मैच कर रहे हैं। सो उसके लिए भी सेम वही प्रोसीजर है, 0 to 9 हमारे पास डेट में फर्स्ट डे के लिए, देन 0 to 9 वैल्यू हमारे पास मंथ के लिए, एंड देन 0 to 9 4 वैल्यूज ईयर के लिए हमारे पास मेंशन हुई। अगर वो डेट ऑफ बर्थ की पैटर्न को मैच नहीं करेगा तो इनवैलिड डेट ऑफ बर्थ आंसर आ जाएगा, अदरवाइज डेट ऑफ बर्थ डिस्प्ले हो जाएगी। सो इन दिस वे हमने सबसे पहले देखा कि हमने फॉर्म क्रिएट किया, यूजर से उसमें इनपुट वैल्यूज ली, उन वैल्यूज को हमने फिर सर्वर को सेंड की पोस्ट मेथड के जरिए, सर्वर पे हमने वेरिएबल्स को असाइन की, और उन वेरिएबल्स को देखते हुए हमने मैच करवाई वैल्यूज। सो हियर यू कैन सी द नेम, email, CNIC, date of birth and submit button is given, and the values will be matched accordingly. There are also some string functions that are available in PHP. Different string functions available हैं, उन available functions को, built-in functions को हम use करेंगे, और use करते हुए हम proceed कर लेंगे अपनी relevant pattern matchings के लिए। String length basically returns the length of the string. आपने अगर किसी भी string की length को measure करना है कि इसकी कितनी length है, आप एक built-in function है इसके अंदर PHP में string length, और उसको लिखने का तरीका ये है strlen, और इनसाइड आपने जो भी स्ट्रिंग लिखना है उसको एज अ वेरिएबल आप मेंशन कर देंगे, वो आपको लेंथ रिटर्न कर देगा। सिमिलरली हमारे पास एक फंक्शन है और स्ट्रिंग के एलिमेंट है स्ट्रिंग कैम, स्ट्रिंग कंपेयर। जब आप दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना चाह रहे हैं कि दो स्ट्रिंग वैल्यूज इक्वल हैं या नहीं हैं, तो आप स्ट्रिंग कैम के फंक्शन को यूज करेंगे। इट विल रिटर्न 0 इफ स्ट्रिंग्स आर इक्वल, अगर स्ट्रिंग इक्वल है तो 0 रिटर्न कर देगा। 1 if first string is greater than the second string, और अगर हमारा पहला स्ट्रिंग जो है वो बड़ा है दूसरे स्ट्रिंग से तो 1 रिटर्न करेगा, और अगर हमारा पहला स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग से ग्रेटर है देन -1 रिटर्न करेगा। सो फर्स्ट स्ट्रिंग ग्रेटर हुआ तो 1 और सेकेंड स्ट्रिंग ग्रेटर हुआ तो -1। सो नाउ सी हाउ वी आर गोइंग टू गिव इट। strcmp हमारे पास कीवर्ड्स है, एग्जैक्टली हमें ऐसे ही मेंशन करने, देन वेरिएबल को प्रेजेंट करने का तरीका, और हम स्ट्रिंग 1 जो भी है वो मेंशन कर देंगे, कॉमा डिफरेंशिएट करने के लिए अगेन वेरिएबल 2 को डिक्लेयर करेंगे, और स्ट्रिंग 2 जो मेंशन करना है उसको मेंशन कर देंगे, एंड सेमीकोलन। नाउ हमारे पास है स्ट्रिंग केस कंपेयर। इफ यू वांट टू चेक द केस इनसेंसिटिवनेस मैनर इन टू स्ट्रिंग, सो उसके लिए हम लिखेंगे स्ट्रिंग केस कंपेयर। अगर हम देखना चाह रहे हैं कि स्मॉल कैप्स में है या कैपिटल कैप्स में, दोनों है, केस सेंसिटिविटी इनकी डिफरेंट तो नहीं है, फॉर दैट हम स्ट्रिंग केस कंपेयर को यूज करेंगे। नाउ लेट्स सी द स्ट्रिंग फंक्शंस इन PHP। एग्जांपल के साथ हम देख रहे हैं, हेडिंग मेंशन हुई हमारी, पासवर्ड की, फॉर्म का एक्शन लिया, पोस्ट के मेथड को हमने यूज किया, टेबल को क्रिएट कर रहे हैं। अगेन टेबल की फर्स्ट रो के अंदर हम नेम ले रहे हैं एज अ टाइप टेक्स्ट, टेबल की सेकंड रो के अंदर हम लोग पासवर्ड ले रहे हैं एज अ टाइप टेक्स्ट, और टेबल की थर्ड रो में हम कन्फर्ट पासवर्ड ले रहे हैं एज अ टाइप टेक्स्ट, एंड एंड ऑफ द टेबल फोर्थ में हम लोग मेंशन कर रहे हैं एक सबमिट के बटन को। ये हम यूजर साइड पे, क्लाइंट साइड पे एक फॉर्म दे रहे हैं यूजर को, सो दैट द यूजर कैन एंटर द वैल्यूज ऑन इट। सो इस तरह हमारे पास एक फॉर्म यूजर को प्रेजेंट होगा, चेंज पास, नेम पास, कन्फर्म पास, और सबमिट की हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी। सो नाउ कंसिडर ऑनवर्ड H1 पासवर्ड वैलिडेशन के लिए हेडिंग है हमारे पास, हेडिंग क्लोज हो रही है।
सो PHP की हमारे पास ऑप्शन स्टार्ट हुई यहाँ पे, एंड नाउ यू कैन सी अ वेरिएबल $name is given, and then what is mentioned over here? It is mentioned वेरिएबल अंडरस्कोर पोस्ट ग्लोबल वेरिएबल हमारे पास बेसिकली है, और नेम यहाँ पे हम जो यूजर्स हमने वैल्यूज दी थी उनको हम मेथड के जरिए ग्लोबल वेरिएबल के मेथड पोस्ट के मेथड के जरिए ग्लोबल वेरिएबल को यूज करते हुए हम असाइन करवा रहे हैं अपने वेरिएबल्स में। हमारे पास नेम का वेरिएबल मौजूद है। सिमिलरली यूजर ने पास की जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो ग्लोबल सुपर वेरिएबल को यूज किया पोस्ट के, और पास के वेरिएबल को असाइन किया, एंड सिमिलरली हमारे पास जो थर्ड वैल्यू थी सी पास कंफर्म पासवर्ड की जो ऑप्शन थी हमारे पास वो भी हमने रिटर्न कर दी। अब हम पहला मेथड हमारे पास जो स्ट्रिंग का था स्ट्रिंग लेंथ, उसको हम चेक करने जा रहे हैं, लेंथ को हम कैलकुलेट करेंगे। सो स्ट्रिंग लेंथ इज पास, उसको हम चेक कर रहे हैं इज लेस देन 8। सो वी रिक्वायर्ड कि हमारे पास जो पासवर्ड है वो 8 कैरेक्टर या इससे ज्यादा होना चाहिए। सो इफ इट इज लेस देन कंडीशन विल बिकम ट्रू, तो इफ का कोड एग्जीक्यूट होगा, इको आउटपुट और नेम जो भी हमारे पास नेम में मौजूद है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, उतनी वैल्यू सपोज 5 होंगी। सो नेम आपने मेंशन किया, सो योर पासवर्ड इज टू शॉर्ट, सो लिमिटेड है। एल्स हमारे पास क्या होगा, योर पासवर्ड लेंथ इज, लेंथ मेंशन कर दी जाएगी जितनी भी है, लेट्स सपोज इट्स मोर देन 8 और ये 8 से ज्यादा है 9 है तो वो मेंशन हो जाएगी लेंथ यहाँ पे। सो स्ट्रिंग लेंथ को यूज करते हुए हमने पासवर्ड की लेंथ को कैलकुलेट किया और उसके अगेंस्ट हमने इफ या एल्स की कंडीशन लगा के आप यूजर को रिक्वायर्ड आउटपुट डिस्प्ले करवा दी। सो हियर यू कैन सी द नेम, द पासवर्ड एंड द कंफर्म पासवर्ड, और यूजर को रेलिवेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी इससे लेते। अब अगेन हम लोग ने यूजर से वैल्यूज ली, अब हम उसी फॉर्म को यूज करते हुए स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग पासवर्ड कंपेयर को यूज करेंगे स्ट्रिंग लेंथ के बाद। सो हियर यू कैन सी यहाँ से ऊपर जो है हमारे पास वो प्रीवियस कोड है, यहाँ पे हम स्ट्रिंग कंपेयर को यूज कर रहे हैं। सो हमने पासवर्ड लिया एंड कंफर्म पासवर्ड लिया और हमने यहाँ पे चेक किया कि नॉट इक्वल्स टू 0 हो। यहाँ पे एक तो हमने यहाँ पे ये जो चीज है ये मैचिंग करेगा खुद कि दोनों की वैल्यू सेम हो, और ये कंडीशन क्यों लगाई कि 0 नहीं होनी चाहिए आपके पास पासवर्ड में कुछ वैल्यूज एग्जिस्ट करनी चाहिए। सो अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हुई मींस ये कंडीशन जो है हमारे पास 0 के इक्वल आ गई, सो हमारे पास आएगा पासवर्ड डजंट मैच प्लीज ट्राई अगेन। एंड अगर ये मैच कर गई और इक्वल टू 0 ना आई तो पासवर्ड मैच्ड सक्सेसफुली। सो इन दिस वे हमारे पास पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड की जो वैल्यूज है वो यहाँ पे मेंशन हो जाएंगी यूजर की। सिमिलरली हमारे पास ऑप्शन है स्ट्रिंग टू लोअर। अगर हम स्ट्रिंग टू लोअर के फंक्शन को यूज करेंगे तो वी कैन कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इनटू लोअर केस। अपर केस में लिखा हुआ है तो लोअर केस में हम मेंशन करेंगे, ऑलरेडी लोअर में है तो वो लोअर में ही रहेगा। सो इसके लिए हमने str स्ट्रिंग टू कन्वर्जन के लिए लोअर केस के अंदर, अगेन वेरिएबल के लिए सिंबल मेंशन किया, डॉलर का स्ट्रिंग हम मेंशन कर देंगे। इसी तरह एक लोअर केस में स्ट्रिंग है, हम उसको अपर करना चाह रहे हैं तो वी आर गोइंग टू यूज स्ट्रिंग टू अपर फंक्शन। सो स्ट्रिंग टू अपर का फंक्शन यूज होगा जो एक अपर केस में लोअर केस वाले स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ऑलरेडी अपर है तो वो अपर ही रहेगा। देन यूसी फर्स्ट हमारे पास फंक्शन है। यूसी फंक्शन बेसिकली इज यूज्ड to convert the first character of a string to upper case, जिसे नॉर्मली हम टाइटल केस कह रहे होते हैं, टाइटल केस में हम लिख रहे होते हैं, that is यूसी फर्स्ट। सो हमारे पास एक स्ट्रिंग होगा, उसका मेंशन किया यूसी फर्स्ट, कन्वर्ट द फर्स्ट कैरेक्टर। देन यूसी वर्ड्स, यूसी वर्ड्स इज अगेन another method and that basically converts the first character of each word in a string to upper case। so आपने अगर 6 वर्ड्स इसको मेंशन किए तो हर वर्ड का जो पहला लफ्ज है अल्फाबेट है उसको कैपिटल कर देगा, बाकी स्मॉल, जिसको मैंने ऑलरेडी बताया टाइटल केस में हम लोग लिखना कहते हैं। सो इसके लिए यूसी फर्स्ट एंड यू मेंशन द स्ट्रिंग एंड अगेन यूसी वर्ड्स आपका कन्वर्ट कर देगा। सो हियर यू कैन सी अवर string function dot php method is post name, input type is text, name is name and input type submit। से एक ही हमने फील्ड लिया यहाँ पे यूजर से नेम का और एक ही हमने ऑप्शन दिया सबमिट का। अब हम सारे फंक्शन उस पर अप्लाई करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले तो हमने पोस्ट का वेरिएबल जो लिया, ग्लोबल वेरिएबल पोस्ट, यूजर से वैल्यू ली और वो हमने अपने वेरिएबल नेम में सेव करवा दी। तो जो भी यूजर ने वैल्यू दी उसको हम लोअर केस में कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं तो स्ट्रिंग टू लोअर का फंक्शन। लाइन ब्रेक
अपर कन्वर्ट चाह रहे हैं तो स्ट्रिंग टू अपर का। फर्स्ट खाली उस नेम के फर्स्ट ऑप्शन को हम लोग अगर कैपिटल करना चाह रहे हैं तो यूसी फर्स्ट, और अगर हमारे पास नेम में डिफरेंट ऑप्शंस हैं लाइक कंप्लीट नेम है मोहम्मद अली खान, तो हम सबको अगर पहले वर्ड को उसमें से कैपिटल करना चाह रहे हैं तो यूसी वर्ड्स मेंशन करेंगे लाइन ब्रेक। सो इन दिस वे यूजर हमारे पास जो वैल्यू मेंशन करेगा उस वैल्यू के अगेंस्ट वो रेलिवेंट रिस्पॉन्स हमारे पास आ जाएंगे। देन हमारे पास है स्ट्रिंग पॉज। स्ट्रिंग पॉज बेसिकली यूज होता है पोजीशन फाइंड करने के लिए और फर्स्ट केस सेंसिटिव अकरेंस ऑफ अ सब स्ट्रिंग। सो आपकी केस सेंसिटिव अकरेंस चेक करेगा पहली जो भी आप पैटर्न मेंशन कर रहे हैं उसके लिए। सो स्ट्रिंग पॉज, आपने स्ट्रिंग मेंशन किया और फिर अपने सब स्ट्रिंग मेंशन किया जो आप उसके अगेंस्ट चाह रहे हैं कि जिसकी पोजीशन आप मैच करना चाह रहे हैं। देन द सेकंड वन इज स्ट्रिंग आर पॉज। इट विल आर मींस it will find the position of the last case sensitive occurrence of that particular substring in a string. So string R pause it will match that particular substring for that string जो भी आप mention कर रहे हैं। And then substring count, substring के अंदर आप चेक करना चाह रहे हैं कि occurrence कितनी आई within that, so ये आपको रिटर्न कर देगा। So इसके लिए substring underscore count, so string substring $, so it will return the number of time one string occurs within another। एक string कितनी दफा occurrence आई उसकी दूसरे में वो आपको substring underscore count का फंक्शन अप्लाई होगा। Let's see all of them one by one। अब अपने नेम के अंदर अगर वैल्यूज को चेक करना है e, so occurrence of e, so कितनी occurrence आई हमारे पास string post first occurrence of e हमें बता देगा। The second one is last occurrence of e, ये हमें बता देगा string R pause। एंड टोटल अकरेंस हमारे पास कितनी आई इस वर्ड के अंदर ई की, वो अकरेंस काउंट करके हमें बता देगा सबस्ट्रिंग। सो फॉर दैट वी मेंशन द नेम एंड अकॉर्डिंगली। सो दिस इज ऑल अबाउट PHP। वी हैव कवर्ड इन द लास्ट 4 लेक्चर्स अबाउट PHP। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन PHP। PHP के तमाम लेक्चर्स को हम समरी कर लेते हैं और उसके बाद हम आज के लेक्चर की भी रिव्यू कर लेंगे। सो PHP के अंदर हमने सबसे पहले देखा कि हम लोगों को PHP के अंदर कोड करने के लिए हमें एक सर्वर चाहिए, दैट इज वेम सर्वर। उसको हम वेम की साइट से डाउनलोड कर लेंगे, जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसका जो भी आर्किटेक्चर है उसके अगेंस्ट हम उसको इंस्टॉल कर लेंगे फ्यू क्लिक से। एंड जब भी हमारे पास PHP का सर्वर वेम सर्वर इंस्टॉल होगा तो उसके अंदर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसकी वजह से वेम का जो आइकन होता है हमारे पास वो रेड या हमारे पास जो है ऑरेंज कलर में होता है। उसके लिए या तो हमारे पास कोई DLL मिसिंग होगी और उस DLL के लिए हम रीडिस्ट्रीब्यूटेड पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं C का। और इसके अलावा हमारे स्काई पे IIS के साथ पोर्ट कॉन्फ्लिक्ट आता है, उसकी फिर हम रेलिवेंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ओपन करके पोर्ट कॉन्फ्लिक्ट जो 80 से 81 कर देते हैं। उसके बाद हमने देखा PHP बेसिकली पर्सनल होम पेज क्रिएट करने के लिए थी, ओपन सोर्स है, फ्री है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है आपके पास। आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, विंडोज़ पे, लाइनक्स पे, यूबेंटो पे, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं इसको। और डिफरेंट ब्राउजर्स को सपोर्ट कर रही है PHP। और PHP डिफरेंट डेटाबेसेस के साथ आप देख रहे हैं कि यूज़ हो सकती है, MySQL के साथ यूज़ हो सकती है, MS Access के साथ यूज़ हो सकती है। और PHP के अंदर आप डायनेमिक वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। PHP जो है प्रोसीजरल पैराडाइम को सपोर्ट कर रही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम को PHP सपोर्ट कर रही है। सो दीज आर द रीजंस यू कैन यूज द PHP। PHP का बेसिक सिंटैक्स ये है कि आप PHP का स्टार्ट टैग मेंशन करते हैं क्वेश्चन मार्क के साथ और एंड टैग पे क्वेश्चन मार्क विद एंडिंग एंगल ब्रैकेट आपके पास आ जाता है। उसके बाद हमने देखा PHP कोड लिख कैसे रहे होते हैं। हम लोग ड्रीमवेवर में लिख रहे होते हैं, मैक्रोमीडिया ड्रीमवेवर में, या हम लोग नोटपैड++ में कोड लिख रहे होते हैं। फाइल को हम सिंपली सेव कर रहे होते हैं .php के साथ, और उस फाइल को हम जहाँ पे भी हमारे पास PHP इंस्टॉल्ड है उस PHP की डायरेक्टरी के अंदर, वेम डायरेक्टरी के अंदर रूट डायरेक्टरी हमारे पास www वहाँ पे .php की फाइल को मेंशन कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, और देन हम उसको लोकल होस्ट से एक्सेस कर सकते हैं। फिर हमने PHP के अंदर कॉन्स्टेंट्स को देखे। कॉन्स्टेंट ऑलरेडी हमारे पास डिफाइंड सेट ऑफ वैल्यूज है, प्री डिफाइंड सेट ऑफ वैल्यूज है कॉन्स्टेंट, जिनको हम यूज करते हैं PHP में। और कॉन्स्टेंट हमारे पास ग्लोबल भी होते हैं। फिर हमने PHP के अंदर वेरिएबल्स को देखा। वेरिएबल्स के अंदर हम लोग वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। और हमने देखा लोकल वेरिएबल्स हैं
जिनका इम्पैक्ट एक फंक्शन तक है, ग्लोबल वेरिएबल्स हैं जो थ्रू आउट द फंक्शन, थ्रू आउट द एप्लीकेशन प्रोग्राम हम आउटसाइड द फंक्शन भी एक्सेस कर सकते हैं, और कुछ ऐसे लोकल वेरिएबल्स हैं जो हम यूज़ करने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, हम नहीं चाहते वो डिस्ट्रॉय हो, हम उनको रीयूज़ करना चाहते हैं, किसी और फंक्शन को पास कराना चाहते हैं, सो उसके लिए हम स्टैटिक का वर्ड यूज़ करेंगे इनके साथ। उसके बाद हमने देखा कि अगर हम किसी फंक्शन की डेटा टाइप को, फंक्शन की डिफरेंट डेटा टाइप्स होती हैं, इंटीजर डेटा टाइप फंक्शन हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, तो हम किसी फंक्शन की डेटा टाइप को चेक करना चाहते हैं तो हम टाइम डिटर्मिनेशन के जरिए उसकी डेटा टाइप को चेक कर सकते हैं। फिर हमने PHP में स्ट्रिंग्स को प्रेजेंट करने देखा कि स्ट्रिंग्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रिंग्स को कैसे मेंशन करते हैं, और हमने ये भी देखा कि अगर हम PHP में किसी भी फंक्शन की अंदर उसकी डेटा टाइप को मेंशन नहीं करते, सो फॉर दैट पर्टिकुलर आपको PHP इंटेलिजेंटली उसकी यूजर की इनपुट को देखते हुए फंक्शन की डेटा टाइप को कंसिडर कर लेगी। सो दिस इज सेड टू बी द कॉन्सेप्ट ऑफ लूजली टाइप PHP। उसके बाद हमने PHP में डिफरेंट ऑपरेटर्स को देखा। ऑपरेटर्स बेसिकली हमारे पास परफॉर्म किए जाते हैं, डिफरेंट वैल्यूज जो हमने लिए वेरिएबल्स को, उनके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। सो जब हमारे पास न्यूमेरिक वेरिएबल्स होंगे तो हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अप्लाई करते हैं, जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मॉडुलस, मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरह हम लोग जो है वो किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, इक्वल को साइन यूज़ करते हैं, और अगर हम कंकैटिनेट करना चाहते हैं तो हम डॉट के साथ दो वेरिएबल को डॉट यूज़ करते हैं, और अगर हम कंकैटिनेट विद अपेंड यूज़ करना चाहते हैं तो हम डॉट इक्वल यूज़ करते हैं। सिमिलरली हमने इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर को देखा, किसी वैल्यू को इंक्रीज करना है, पहले इंक्रीज करना है और फिर उसके बाद रिटर्न करना है वेरिएबल को, तो हम प्री इंक्रीमेंट यूज़ करते हैं। पहले हम रिटर्न करना चाह रहे हैं, उसके बाद 1 से इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो हम पोस्ट इंक्रीमेंट यूज़ करते हैं। सिमिलरली फॉर द डिक्रीमेंट, अगर हम पहले डिक्रीज करना चाह रहे हैं किसी वैल्यू को तो हम लोग पहले डिक्रीज करेंगे वैल्यू को -1 से, और उसके बाद वेरिएबल को असाइन करेंगे, और अगर हम पहले रिटर्न करके फिर डिक्रीमेंट करना चाह रहे हैं तो हम उसके लिए पोस्ट डिक्रीमेंट यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। हम डिफरेंट कंडीशंस को अगर चेक करना चाह रहे हैं तो हम एंड को चेक करेंगे, जो दोनों वेरिएबल्स को ट्रू होने पे रिटर्न करेगा, और जो किसी स्पेसिफिक को चेक करेगा। सिमिलरली हम वैल्यूज़ को किसी ग्रेटर को चेक करना चाह रहे हैं, किसी को वैल्यू को दूसरी वैल्यू से लेस के चेक करना चाह रहे हैं, या हम चाह रहे हैं एक वैल्यू दूसरे ग्रेटर हो और इक्वल भी हो तो फॉर दैट ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड सिमिलरली एक वैल्यू किसी से स्मॉल हो या इक्वल भी हो तो लेस देन इक्वल टू हम कंपेरिजन ऑपरेटर्स के लिए चेक करते हैं। दो बड़े इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद थे। इक्वालिटी के ऑपरेटर, जब डबल इक्वल यूज हो रहा होता है तो बेसिकली हम पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यूज को चेक कर रहे हैं कि दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज मैच कर रही है या नहीं, और अगर हम ट्रिपल इक्वल यूज कर रहे हैं तो दिस इज सेड टू बी द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिकल, और वो आपकी वेरिएबल की डेटा टाइप को मैच कर रहा होगा। अगर दोनों वेरिएबल्स जो आपने मेंशन किए उसकी डेटा टाइप सेम है तो आपको ट्रू रिटर्न होगा। मूविंग ऑनवर्ड इन द PHP, हमने कंडीशनल स्टेटमेंट को देखा, इफ स्टेटमेंट को देखा। इफ के अगेंस्ट हम लोग एक कंडीशन मेंशन करते हैं, कंडीशन ट्रू होती है तो इफ की लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हमने इफ एल्स स्टेटमेंट को देखा कि अगर आपकी इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होती तो जो आपकी लाइन ऑफ कोड एल्स में मेंशन होगी वो एग्जीक्यूट होगी। एंड देन इफ एल्स स्टेटमेंट आपने मेंशन की, जिसमें हमारी दो कंडीशंस हैं, पहली कंडीशन इफ की होगी, दूसरी एल्स इफ की। अगर पहली कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास इफ का कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर पहली कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो सेकंड कंडीशन जो एल्स इफ में मेंशन है उसको चेक किया जाएगा, और सेकंड कंडीशन जो एल्स इफ में मौजूद है अगर वो ट्रू होगी तो एल्स इफ का कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर सेकंड कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई तो एल्स में जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। एंड देन हमने देखा स्विच स्टेटमेंट, हमारे पास एक स्पेसिफिक कंडीशन मेंशन होगी, उसके अगेंस्ट डिफरेंट केसेस मेंशन होंगे, वो कंडीशन जिस भी केस से मैच होगी उस केस का लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर कोई भी केस मैच नहीं होता तो डिफॉल्ट में हमारे पास कंडीशन मैच होगी, उसका कोड एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हमने लूप को देखा, फॉर लूप को देखा, जो इनिशियलाइज करेगा एक पर्टिकुलर वेरिएबल को, उसकी कंडीशन एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद वो वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है तो जब तक वो कंडीशन मैच होगी फॉर का लूप एग्जीक्यूट करेगा। देन वाइल का लूप हमेशा कंडीशन को मैच कर देगा और उसके बाद वाइल के अंदर एग्जीक्यूट होगा। देन डू वाइल लूप बेसिकली वंस जरूर एग्जीक्यूट होगा फर्स्ट टाइम, उसके बाद जो कंडीशन है वाइल के बाद वो मेंशन होगी, और अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर डू एग्जीक्यूट होगा। और एरे के अंदर आइट्रेट करने के लिए, एनुमरेट करने के लिए, एरे के तमाम वैल्यू के लिए हम फॉर ईच लूप यूज करते हैं। फिर हमने एरेज अलग से भी देखी। एरेज का कॉन्सेप्ट PHP में एसोसिएटिव एरेज को हमने देखा, एरेज को क्रिएट कैसे किया जाता है, और एरेज को बेसिकली हमने देखा असेंडिंग ऑर्डर में कैसे सॉर्ट असेंडिंग करेंगे, और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम एरेज को कर सकते हैं मैनेज। देन हमने देखा कि हमने जो डेटा लिया यूजर से, फॉर्म्स का डेटा हमने यूजर से लिया, उस डेटा को हम लोग बेसिकली सेंड करना चाह रहे हैं सर्वर पे,
तो डाटा को सर्वर पे सेंड करने के लिए हमें जो है वो पहले डाटा को क्लाइंट साइड पे कुछ वैलिडेट करना होगा, कुछ सर्वर साइड पे वैलिडेट करना होता है। सो क्लाइंट साइड पे जब हम एक डाटा यूजर से ले रहे होते हैं तो उसमें सिर्फ हम इतना चेक कर रहे होते हैं कि क्या वो मैंडेटरी है या नहीं। सो रिक्वायर्ड के अप्रोच के जरिए हम चेक कर रहे होते हैं और उस डाटा का रेलिवेंट जो पैटर्न है वो हम सर्वर साइड पे चेक कर सकते हैं। सो डाटा को सर्वर साइड पे सेंड करने के लिए हमारे पास जो मेथड्स हैं वो गेट और पोस्ट के मेथड्स हैं। सो गेट के मेथड को हम यूज़ करते हैं जब हम ब्राउज़र में मेंटेन करना चाह रहे हैं हिस्ट्री को, जब हम चाह रहे हैं कि बुकमार्क कर लें, जब हमारा डेटा केस सेंसिटिव नहीं है, जब यूआरएल में अगर डेटा अपीयर हो रहा है तो वी हैव नो इशू कि बेशक हमारे पास पैरामीटर्स डिस्प्ले हो जाए। सो फॉर दैट वी आर यूजिंग गेट और लिमिटेड नंबर ऑफ गेट के अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस, एक स्पेसिफिक रेंज मेंशन है। एज कम्पेयर टू डेट जब हम ये चाह रहे हैं कि हम बुकमार्क नहीं करना चाह रहे, अपनी हिस्ट्री को मेंटेन नहीं करना चाह रहे, हमारा सेंसिटिव डेटा है, पासवर्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन है और यूआरएल में भी हम नहीं चाहते कि अपीयर हो और हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शन ना हो लेंथ की, सो फॉर डेट हम पोस्ट के मेथड को यूज करेंगे। सो गेट इन पोस्ट के अगेंस्ट फिर हमने सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स को देखा डिफरेंट, और सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हमारे पास डिफाइंड सेट ऑफ वेरिएबल्स है जो हमें डाटा को मैनेज करने में, पास ऑन करने में हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास डिफरेंट HTML एलिमेंट्स हैं, फील्ड डाटा है हमारे पास, उसका डाटा हमने पास ऑन करना है तो वो हमने देखा। फिर कंटिन्यू हिडन डाटा का कोई फील्ड है हमारे पास किसी HTML फॉर्म में तो उसका डाटा भी हम एक्सेस करके सर्वर को पास करवा सकते हैं और उसके अगेंस्ट प्रोसेसिंग हो सकती है। इसी तरह हम लोग ने चेक बॉक्स, रेडियो बॉक्स एंड लिस्ट के अंदर देखा कि यूजर से अगर हमने चेक बॉक्स, रेडियो बॉक्स या लिस्ट में से कोई ऑप्शन ली तो कैसे उसको हम लेंगे, सर्वर को पास करवा सकते हैं हम। और देन हमने देखा सेशन क्या होता है, सेशन को क्रिएट कैसे कर रहे हैं, सेशन की आईडी को कैसे हम मल्टीपल पेजेस में लिंक कर सकते हैं, उसके लिए हमने एक डिटेल एग्जांपल देखी सेशन वेरिएबल के जरिए। और उसमें हमने सेशन को डिस्ट्रॉय करने भी देखा कि सेशन हमारे पास, हम सेशन को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। और उसके बाद आज का हमारा लेक्चर था, दिस इज द लास्ट लेक्चर फॉर PHP। इसके अंदर हमने सबसे पहले देखा रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली हमारे पास एक डिफाइंड सेट ऑफ पैटर्न को मैच करने के लिए यूज होती है और उस पैटर्न के अंदर हमारे पास डिफरेंट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स डिफाइन है। उसमें हमारे पास ब्रैकेट मेंशन है और ब्रैकेट के अंदर हम स्पेसिफिक रेंज बता देते हैं, उस रेंज को मैच करने के लिए ब्रैकेट यूज करता है। उसके बाद हमारे पास क्वांटिफायर है डिफरेंट और हर क्वांटिफायर का स्पेसिफिक मीनिंग है और वो क्वांटिफायर उस अकॉर्डिंगली यूज होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर प्लस है तो इट मींस कि एटलीस्ट 1 अकरेंस हमें उस पैटर्न की चाहिए। इफ इट इज स्टैटिक इट मींस वी नीड 0 और एज मेनी अकरेंस। इफ इट इज क्वेश्चन मार्क इट मींस वी नीड मिनिमम 0 एट मैक्स 1। सो हमारे पास हर पैटर्न की डिफरेंट क्वांटिफायर्स के डिफरेंट मीनिंग्स है। इसी तरह हमारे पास डॉलर साइन एंड ऑफ द पैटर्न को मैच करने के लिए है। उसके बाद हमारे पास सब पैटर्न्स डिफाइन है, एक पैटर्न के अंदर सब पैटर्न है उसके ऊपर भी हम रूल अप्लाई कर सकते हैं और कुछ प्री डिफाइंड कैरेक्टर्स हैं जिसके अंदर हमारे पास /d, स्मॉल 0 to d, स्मॉल बेसिकली A to Z को चेक करने के लिए, कैपिटल D जो है हमारे पास मेंशन है एंड देन हमारे पास /w जिसका स्पेसिफिक पैटर्न कैरेक्टर्स का और नंबर्स का मेंशन है। मूविंग ऑनवर्ड हमने देखा कि हम एक यूजर नेम को, पासवर्ड को, डेट को, CNIC को और ईमेल को किस तरह वैलिडेट कर सकते हैं। उनके स्पेसिफिक पैटर्न्स को हमने पहले इंडिविजुअली देखा, फिर उसके लिए हमने ब्राउज़र में यूजर से इनपुट ली, उन इनपुट को हमने ग्लोबल वेरिएबल, सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स के जरिए पोस्ट मेथड को देखते हुए सर्वर को पास ऑन किया और फिर सर्वर साइड पे हमने पर्टिकुलर पैटर्न को मैच करके देखा और हमने ये देखा कि हमारी मैचिंग अप्लाई हो रही है इन दिस वे। एंड इन द एंड हमने वैलिडली चेक किया यूजर की इनपुट को। उसके बाद हमारे कुछ डिफाइंड फंक्शंस थे, उनको हमने देखा। प्रीरेक मैच हमने देखा, हमारे पास एक स्पेसिफिक ऑलरेडी अवेलेबल हमारे पास फंक्शन है, वो मैच करवा रहा है हमारी पर्टिकुलर वैल्यूज को और अगर हमें तमाम वैल्यूज को मैच करना है तो हमारे पास प्रीरेक मैच ऑल है एंड सिमिलरली हमारे पास प्रीरेक _grep का फंक्शन भी मौजूद है। In the end of today's lecture we have discussed about string functions in PHP. For that हमने अगर देखा कि हम किसी स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करवाना चाह रहे हैं, सो वी हैव स्ट्रिंग लेंथ दे देगा। कंपेयर करना चाह रहे हैं दो स्ट्रिंग्स को कि वो इक्वल आपस में वैल्यूज रखते हैं कि नहीं, तो स्ट्रिंग कैंप है। देन स्ट्रिंग केस कैंप है, अगर हम केस को देखना चाह रहे हैं मैच के दोनों का स्ट्रिंग का जो केस है कि अपर है या लोअर है वो देखना चाह रहे हैं तो स्ट्रिंग केस कंपेयर का फंक्शन है। देन अगर किसी पर्टिकुलर
स्ट्रिंग को हम लोअर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो स्ट्रिंग टू लोअर, और अपर करना चाह रहे हैं तो स्ट्रिंग टू अपर। और उसके बाद अगर किसी स्ट्रिंग के फर्स्ट वर्ड को कैपिटल करना चाह रहे हैं, सो फर्स्ट अल्फाबेट को कैपिटल करने के लिए यूसी फर्स्ट है, और अगर मल्टीपल वर्ड्स हैं और हर वर्ड के पहले वर्ड को कैपिटल करना चाह रहे हैं तो हमारे पास यूसी वर्ड्स का फंक्शन है। देन स्ट्रिंग पोजीशन को फाइंड करना चाह रहे हैं तो हमारे पास एक पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग की पोजीशन देखना चाह रहे हैं तो स्ट्रिंग पोजीशन है, और इसी तरह हमारे पास स्ट्रिंग एंड ऑफ द लास्ट आर पोस्ट का हमारे पास फंक्शन है कि एक पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग को लास्ट में लिखना चाह रहे हैं। एंड देन सब स्ट्रिंग काउंट, अगर पर्टिकुलर किसी स्ट्रिंग की अक्रंस को सब स्ट्रिंग की अक्रंस को स्ट्रिंग की अक्रंस में काउंट करना चाह रहे हैं, फॉर दैट वी हैव अ फंक्शन ऑफ सब स्ट्रिंग काउंट। So this is all about for today's lecture, and we are ending for the PHP concept with today's lecture. Thank you for today's lecture.